Assalamu alaikum everyone. We'll just start in a couple of minutes while we wait for other people to join. Yeah, so we've got a couple of participants now. Assalamu alaikum everyone. I'm Maria Murshid and I'm representing Kamai and I'm employed with them as their marketing and communications associate. Kamai initiated career conversations earlier this year as a way to help or facilitate all types of professionals as they navigate through their careers. So far, we've successfully carried out 9 episodes, and I very humbly welcome you all to our 10th one. Before we go forward with the session, of course, I'd like to introduce our guest for today, Ms. Samin Zaki. So joining us in our discussion about networking for professional success, our guest speaker today is Ms. Samin Zaki, as I mentioned, who is a renowned career advisor and counselor focusing on career decision-making, personal brand development, and social networking. She's currently serving as a career advisor and assistant registrar at the University of Punjab, where she's made quite a name for herself in her 10 plus years of experience in career coaching, advising, and counseling to all types of professionals, including university students, graduates, and mid-career professionals. She's also an expert in public relations, training facilitation, and providing career coaching services. So let's please welcome our guest. How are you today, Ms. Samin? Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much, Mariam and Kamai, for this opportunity and a very, very nice and a very healthy introduction. I'm just trying my best to serve the young graduates and spreading the awareness about careers. So yes, today's topic is very, very close to my heart, and it's something that we do in our daily lives. So, कहाँ से आप start करेंगी, Mariam? Yeah, so before we begin with our session, I'd like to tell everybody that if you have any questions, there is a Q&A chat box at the bottom. You can drop your questions there, or you can wait till the end of the discussion to raise your hand and we'll get back to you then. So before we move on to a more insightful conversation, first of all, Samin, I'd like to know how would you define networking, or what purpose do you think it serves? I'm sorry, can you please come again? Your voice was dropped. Yeah, so I wanted to ask that before we move on to a more insightful conversation, so we would just like an overview that how would you define networking? Okay. So yes, networking is a very buzzword since a couple of years now. And this is something that is actually being advised by the counselors and advisors and many HR professionals that your network is your net worth. That is actually true. नेटवर्किंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नेटवर्किंग इज समथिंग जो कि कोई नई चीज एज सच नहीं है. इट हैज बीन इन द game of the careers and professional collaborations. लेकिन ये है कि इसमें the whole idea of the networking has changed over a period of few years. अगर हम ये बात करें कि what is networking, it is as simple as building your relationships and maintaining them. सिर्फ किसी से आपने मिलना या आप कोई नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हैं, यू आर बिल्डिंग द कनेक्शंस, बट उसको अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप फॉलोअप्स नहीं कर रहे हैं और आप एक वेब ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं,
तो वो एक मिसिंग लिंक होता है नेटवर्किंग में, जो कि मेरे ख्याल है इस वजह से भी लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आती है कि आई मीन वी आर गोइंग टू डिफरेंट इवेंट्स, वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल, सो वी आर स्टिल नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटीज. सो इन अ नटशेल, अगर हम बिल्कुल शुरू में स्टार्ट में बात करें और बहुत सिंपली इसको लेकर चलें, to tell to other people, it is basically an art of building and sustaining the relationships and maintaining them. Again, with what sort of people? The people who are having mutual interest as you have. So that is very important. अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ नेटवर्क कर रहे हैं जो कि आपके उसमें आपकी इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं है, आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं है, then it is of no use. Yes. I think what you said is very interesting, that it's not just about building relationships, it's also about building the right kind of relationships. And we will be Yes. getting on to that. But before we move on, I'd like to know a little bit historical uska perspective bhi. So how old or new do you think the phenomenon of networking is in professional careers, let's say? Okay. Do you think it's gained popularity recently, or it's been around for, quite some time? Exactly. As I said earlier, it has been over here. Jab se the human beings are on earth, obviously the networking is there. This is very, very important to understand that all of us, all the human beings, we all need and require each one of us. मुझे किसी से काम करवाना है या किसी को मेरे से काम करवाना है, so हम कभी भी isolation में नहीं रहते हैं. We are always in interaction with people, with different people, with different groups of people, with different sets of people. So networking has always been there. Ek time mein it has been said like public relations. अगर आप कह लें कि एक ज़माने में ये बहुत वर्ड जो है वो इसका भी बज़ वर्ड था, और ये कहा भी जाता था कि अच्छा जो फलाना पर्सन है उसकी बड़ी अच्छी PR है, सो उसका मतलब ये होता था कि दिस पर्सन नोज अ लॉट ऑफ पीपल, और लोग इसकी सुनते भी हैं, लेकिन लोगों के काम भी करवा देते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो नेटवर्किंग इज नॉट समथिंग न्यू. दिस नेटवर्किंग का जो वर्ड है, यस हर क्योंकि ट्रेंड्स आते रहते हैं, चेंजेस होती रहती हैं, सो दिस इज समथिंग अ बज़ वर्ड, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको इसलिए भी ज़्यादा मिली विद द बूम ऑफ द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त जो कि अगर हम करियर सक्सेस की बात करें तो उसमें लिंक्डइन इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट. बट हैविंग सेड दैट इट टोटली डिपेंड्स कि आपका करियर, आपकी फील्ड क्या है, आप किस करियर में जाना चाह रहे हैं. फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मे बी इंस्टा is playing a very great role. I know a lot of people who are into business like कुछ products बना रहे हैं, कुछ dresses बना रहे हैं, baking कर रहे हैं, something like that. So it's more picture oriented. They have to show the pictures to their customers, to their audience. तो वो Insta को बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं. Over the LinkedIn, I've seen that yes, products are also always there, but I've seen it's more about services. And again, products हो या services, and this is very important to understand कि आप अगर जब इस तरह के platforms को use कर रहे हैं for building your identity, for building your reputation, identity, you're building your brand, तो आपने ये देखना है basically कि आपकी audience कहाँ पर है. If I am interacting on LinkedIn, I know that I'm interacting with the youngsters, with the mid-career professionals, the people who are very, very career oriented. Yeah. So they are actually on LinkedIn. So I am building my brand on LinkedIn. It's just an example. Mm-hmm. So yes. Yeah, that's very interesting. और बीच में आपने बात की public relations की. Yes. Now, what I wanted to ask is, do you think there's a distinct difference between networking and public relations as two different disciplines, you would say? Yeah, can you call networking to be personal public relations that you're, sort of making relations for your own personal career advancement? Honestly, इसको अगर हम बहुत ज़्यादा theoretical definitions में जाएं तो maybe इसमें कोई difference हो, but what is my understanding, I'm just going to share that with you. देखिए, networking में basically होता क्या है? कुछ लोग, और मैं इस चीज़ से बात शुरू भी करूंगी कि कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हम नेटवर्किंग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग कर भी रहे हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट गिविंग अस द अपॉर्चुनिटीज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू गिव बिफोर यू रिसीव. दैट्स द रूल. फॉर इंस्टेंस अगर हम चले यंगस्टर्स की हम बात कर लेते हैं, आई बिलीव आप बता रहे थे कि आपकी ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, अर्लियर करियर्स में हैं. उनको ये होता है कि they are contacting the people
who are in the hiring authority में हैं या वैसे वो managerial level पर हैं. So आपने ये एक human nature होती है जब आपको कोई contact कर रहा है for certain tasks out of any relationship अगर नहीं है, so people might not respond you in that sense. सबसे पहले ये देखें कि आप basically उनको क्या provide कर सकते हैं. It's not about the services or anything that you're charging for. लेकिन कोई ऐसी चीज जो आप उनको ऑफर कर सकते हैं. I mean something that is a good starter for the conversation. ऐसी कोई चीज. तो public relations and networking they all go hand in hand और give and take बहुत ज्यादा है इसके अंदर. Mutually So beneficial. it's very very important to understand कि आप सिर्फ अपने network से जो है वो सब चीजें ले नहीं सकते. You have to give to the network first and then things keep coming to you. That's very Yes. interesting. Yeah. So the next thing that I wanted to discuss is how essential do you think networking is in every stage of your professional life? तो जिस तरह अभी हम audience की बात कर रहे थे, so there must be some people who are in their university, कुछ graduates होंगे, कुछ mid-career level professionals होंगे. So how important is it in each and every stage? I believe it's the foremost thing at every stage. अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटी की या कॉलेज ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर देती हूँ with my profession as well, so people are able to understand it in a better way. I work at a university और university students के साथ जब हम interaction कर रहे होते हैं, this is very very important, जो कि मेरे ख्याल है हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उस तरह से नहीं सिखाते हैं कि आपका जो अपना एक रिलेशन है विद द टीचर्स, with any of your supervisors, अगर हम colleges या universities की बात करें तो administration staff भी जो है वो हो सकता है वहाँ पर मौजूद. और अगर हम इस बात की बात करें कि career placement offices होते हैं. अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं ये आपको शेयर करना चाह रही हूँ कि 2 या 4 साल का प्रोग्राम है किसी भी यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ ये होता है कि 2-2.5 साल के बाद जब एक स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं, सो उसके बाद वंस इन अ ब्लू मून वो अगर आ जाते हैं आपके ऑफिस में और आपसे मिलते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट्स अ सरप्राइज फॉर मी कि अच्छा आप हमारे ग्रेजुएट हैं. कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि जब आप एक जगह पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप एक जगह पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, start building relationships before you actually need them. It's very interesting. मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए जो है वो कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी बिकॉज आई रियली वांटेड कि मैं कुछ रिसोर्सेज भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ फॉर द ऑडियंस. आई केम अक्रॉस अ वेरी नाइस बुक. मैं उसका स्क्रीनशॉट बल्कि आपके साथ शेयर भी कर दूंगी तो बाद में आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिएगा. उसमें यही इनफैक्ट लिखा हुआ था, नेटवर्किंग इज समथिंग जो कि आप स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए जो कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है शायद उस तरीके से, बट यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग देम बिफोरहैंड. इसको एग्जांपल को मैं इसके साथ कनेक्ट करती हूँ. अभी कोविड के सिलसिले में, कोविड के क्राइसिस में बहुत सारे लोग ले ऑफ हुए. बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, हायर पोजीशंस पे रहते हुए काफ़ी ऐसे लोग भी ले ऑफ हुए जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा करियर इस तरह से एंड हो जाएगा. एंड इट वाज वेरी सैड टू सी. बहुत सारी पोस्ट भी आती थी, कई मैसेजेस भी आए मुझे, कई लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई कि ऐसी ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कम्प्लीटली जिनका काम ही खत्म हो गया. फॉर इंस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं थी, एयरलाइन इंडस्ट्रीज में काफ़ी लोगों को उन्होंने ले ऑफ किया. सो उन लोगों के पास टैलेंट बहुत था, स्किल भी था. What they were lacking, they were not connected with the people in their industry. वो जानते ही नहीं थे कि उनकी इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग हैं, किनके साथ मतलब किनके साथ वो हेल्प किन से हेल्प ले सकते हैं. सो वो जो एक एलिमेंट था नेटवर्किंग का, आई मीन आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इतने सारे रिलेशनशिप्स की, में भी किसी से काम आपको इस तरह से नहीं पड़ा है, लेकिन आप उसको पहले से आप अपने एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ पहले से रिलेशनशिप बिल्डिंग में आए, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने उनसे कुछ लेना है. यू ऑल्सो हैव टू गिव बैक. आप कहीं पे भी हों, आपने कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में गिव बैक का तो एक कॉन्सेप्ट है, तो वो आपने देना होता है और बेसिकली वो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है.
Yes. That's very interesting. So essential में तो आपने वो एग्जांपल दे दी कि networking is अक्सर आपके survival का मसला बन जाता है कि it's like you lose your job or you retain your job. I think a Yes. couple of more people have joined us. So for those of us who've just joined us, we're having a discussion on networking for professional success with Ms. Samin Zaki. And moving on with our discussion, what aspects do you think in a professional setting जिनमें networking can help one? So for instance, finding a job, mentorship, learning opportunities वगैरह, और कौन-कौन से aspects हैं do you think जिनमें networking हमें help कर सकता है? अगर हम प्रोफेशनल सक्सेस की बात कर रहे हैं ना मरियम, तो इसमें डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट्स में आपको जो है वो नेटवर्किंग आपकी हेल्प करती है. इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई वाज जस्ट मीटिंग अ पर्सन इन माय कॉन्टैक्ट्स अ डे बिफोर यस्टरडे, और सिंस आई एम इन प्लेसमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स, तो मुझे उन्होंने वैसे शेयर किया कि देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी जिनको आपने रेफर किया था फॉर सर्टेन पोजीशन जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी. सो और भी लोगों को हमने ऑब्वियसली शेयर किया था, बट शी वाज टेलिंग मी कि हमने उनको हायर कर लिया, एंड द रीजन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. डेफिनेटली द गाय हैड स्किल, द गाय हैड पोटेंशियल, उसका कम्युनिकेशन अच्छा था, सब्जेक्ट मैटर उसको पता था, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब पोजीशन पे उसने अप्लाई किया स्टूडेंट ने, obviously he knew the organization's name. Perhaps he knew the hiring manager name as well, जो आप LinkedIn पे जो है वो कई दफ़ा सर्च करके भी पता कर सकते हैं या अपने contacts के थ्रू. The guy actually messaged the hiring manager, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने उनको मैसेज किया, प्रोफेशनल. That was a proactive approach. और इंटरव्यू से पहले ही हायरिंग मैनेजर को उसकी प्रोफाइल के बारे में पता था, और इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए द गाय गॉट हायर्ड. अब इस चीज से आप इस चीज को कनेक्ट करें कि नेटवर्किंग जो है वो आपके ना सिर्फ करियर के स्टार्ट में, करियर के ड्यूरिंग भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. जैसा मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे आप समझ लें कि एक्सपर्ट्स थे, कुछ ऐसे हायर मिड करियर प्रोफेशनल्स थे जो कि ले ऑफ हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि ऑब्वियसली द जॉब्स वर नॉट ओवर देयर, लेकिन उसके They weren't बाद well connected. उनको हाँ जी एग्जैक्टली दे वर नॉट वेल कनेक्टेड, और उनको बाद में इश्यूज भी इसी वजह से हुए बिकॉज दे डिड नॉट नो मच पीपल इन द इंडस्ट्री कि उन्होंने कहाँ जाना है, प्लान भी नहीं बनाया हुआ था. Yeah, so we have a very interesting question, और मेरा भी एक यही सवाल था. Speaking particularly about job offers or getting opportunities, do you think there's a fine line between, networking getting unethical at some point? वो जो कहते हैं ना सिफारिश से job मिल गई कि उसको तो फला बंदा पता था. So do you think there's a fine line between that, and how do you define the difference between the two things? अच्छा ठीक है. अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये क्वेश्चन किया मरियम, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई कीप गेटिंग सच मैसेजेस एंड कंसर्न्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन डेली बेसिस और ग्रेजुएट्स के साथ. अच्छा, एक सिंपल सी बात है, व्हेन वी आर हायरिंग समवन जो कि हमने अपने घर में किसी की सर्विस करनी है, हमने कोई ड्राइवर रखना है, हमने कोई कुक किसी को एज ए कुक रखना है, और मे बी सम हाउस हेल्प या इस तरह करके, तो ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसी भी अननोन पर्सन को नहीं हायर करते. वुड यू एग्री टू मी दैट विद मी ऑन दैट, कि हमारी कोशिश होती है कि जिसको हम रखें अपनी इन सर्विसेज के लिए, उसको हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के थ्रू एटलीस्ट जानते हो. Are you getting my Authenticity point? बढ़ जाती है, yeah. Authenticity बढ़ जाती है, exactly. This is exactly what networking does in the white collar jobs as well. ठीक है. अब आपने सवाल जो किया था सिफारिश वाला, अच्छा सिफारिश जो है ना, अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं या ग्रेजुएट्स कहते हैं कि जी मैडम रेफरेंस के बगैर तो कहीं जॉब नहीं मिलती है. ऐसी बात नहीं है. वी आर इन प्लेसमेंट्स. आई एम डूइंग प्लेसमेंट सिंस लास्ट 10 years. It has been a decade. सिफारिश देखें एक ऐसी चीज़ों में मैं उसको कहूँगी कि इट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन. सिफारिश उस चीज़ को मैं समझती हूँ कि एक पर्सन के अंदर पोटेंशियल ना हो, वो मेरिट पे भी ना हो, और फिर भी वो अपने किसी रेफरेंस के थ्रू कहलवाए कि जी अच्छा इनको यहाँ पे जॉब मिल जाए या जो भी उनका काम है. ठीक है.
एक चीज होती है कि आप मेरिट पे हैं, आप बिल्कुल जो है वो डिजर्व भी करते हैं, and you just want your reference to put a good word for you to increase the authenticity. And this is something that I have done. I have done this for certain of my graduates. उनका जो complete एक professional attire ऐसा था जैसे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स का, कि मैंने उनके लिए स्पेशली ईमेल्स की टू सर्टेन हायरिंग मैनेजर्स, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो लोग वहाँ पर हायर भी हुए, नॉट बिकॉज ऑफ माई वर्ड ओनली, क्योंकि उनको दे एक्चुअली केम अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस जो मैंने उनको लिख के थे. सो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन इसको मैं ये नहीं समझती हूँ कि आप, हाँ लोग कुछ कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कल्चर है कि आप जो है वो कभी भी सीधे रास्ते से कुछ लोग नहीं जाते हैं, और हमेशा उनका होता है कि हम किसी ना किसी के साथ कोई रेफरेंस लगा के ही हम अपना काम करें, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता. हाँ, कुछ जॉब्स में अब हायरिंग मैनेजर्स इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट द पीपल हु आर इन माई कॉन्टैक्ट्स दे वुड रियली एग्री टू द फैक्ट कि अगर आपने कोई हायरिंग करनी है और आपके पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनमें से 2% डेफिनेटली ऐसे होंगे जो किसी ने आपको रेफर किए होंगे, 3% कोटा आपने शायद डेफिनेटली ऐसे लोगों का रखा होगा जिन्होंने आपके प्रॉपर एक जो प्रोसीजर है उसके थ्रू अप्लाई किया होगा. सो येस, इट हैपेंस. सो दैट इज द रीजन कि आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए. हाँ, उसमें नेटवर्क में अच्छा होने का क्या मतलब है, वो ये कि आपकी अपनी जो एक रिप्यूट है, आपका अपना जो कैरेक्टर है, आपका अपना जो एक फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि आप एक फ्रेशर हैं या आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं या आप सेल्स कंसल्टेंट हैं, सो यू आर बेसिकली डूइंग जस्टिस विद वट एवर इज रिटन ऑन योर सीवी. तो वहाँ पे अगर आप अपना नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक उसमें कोई गलत बात नहीं है. आई थिंक फिर वही बात आ जाती है कि यू कैन से अ नेटवर्क, योर नेटवर्क कैन गेट यू टू द इंटरव्यू टेबल बट इट कैंट गेट यू द जॉब, राइट? एग्जैक्टली. उसके आगे या जो है वो काम आपने खुद करना होता है. या सिंस जब आपने डिफाइन किया था नेटवर्किंग को, तो आई थिंक you use the word कि there's the right kind of networking and there's the networking that doesn't work, right? So the Yes. next question that I have for you वो ये है, how do you know who to network with or who to add to your network? And then once you're Mhm. starting to build up your network, where do you initially start from? That's a very interesting question, especially for the people who haven't been into networking before. अच्छा, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि आपका अपना फील्ड क्या है, आप किस करियर डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं. इफ़ यू आर एन इंजीनियर और यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, या उस एरिया में आप ऑलरेडी अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, पहले तो आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है कि आप और मे बी यू आर अ लॉयर, तो आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है कि आप किस साइड पर जाना चाह रहे हैं. उसका बहुत आसान सा तरीका ये है, जब आपने कि नेटवर्क आपने करना बेसिकली किसके साथ है. लेकिन जितने भी डिसिप्लिन होते हैं ना, उनकी कुछ एसोसिएशंस होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, और वो इसी वजह से बनी होती हैं कि वो उस डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको नर्चर भी करते हैं. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप सर्च कर लेंगे, बाय द वे देयर इज अ डॉक्यूमेंट ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल जिसमें मैंने एक कंपाइलेशन की हुई है कुछ ऐसे एसोसिएशंस की ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि सिर्फ मैंने सर्च करके जो जितनी मेरे नॉलेज में है वो मैंने लिखी हैं, और बल्कि जब मैंने उसको 2-3 दफ़ा पब्लिश भी किया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप हमारा भी इसमें ऐड करें. अब अगर HR के हैं तो दे मस्ट बी नोइंग कि SHRM चैप्टर इज रनिंग इन पाकिस्तान, देन देयर इज अ मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. सो ये जो है ना, इन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं. अगर आपने मार्केटिंग में करियर बनाना है तो यू शुड बी नोइंग कि आपके रीजन में ग्लोबली भी और आपके रीजन में भी ऐसी कौन सी एसोसिएशंस हैं जो रन हो रही हैं ऑलरेडी. अच्छा, इन एसोसिएशन के साथ कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं. आप इनकी वेबसाइट्स पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको इनके सोशल मीडिया पेजेस भी मिल जाएंगे, या फिर आप अपने डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स में आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, डू यू नो सच एसोसिएशंस एंड नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. इवेंट्स पे जब आप जाते हैं, या वर्चुअल होंगे या फिजिकल इवेंट्स भी होंगे, वर्चुअल का ज़्यादा ट्रेंड हो गया डेफिनेटली ड्यू टू कोविड. जब आप वहाँ पे जाते हैं तो बेसिकली जो उस इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट आप कह लें कि अथॉरिटी फिगर्स हैं या हायरिंग मैनेजर्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे. उनके साथ आपने कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करनी है, दैट इज़ एन आर्ट.
और एक दफ़ा जब आपने बिल्ड कर ली है तो उसके बाद आपने उसको मेंटेन करना है, दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं ज़रूर देती हूँ हमेशा। आई बिलीव कि जैसे अगर स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स हैं, आप लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप लोगों को इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए भेजा जाता है। वो एक बहुत की पॉइंट होता है, उसको हम बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। उसमें आपने करना है क्या है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल, और जब आप यूनिवर्सिटी के एक रेफरेंस के साथ जाते हैं ना, तो वो आपको बहुत डिफरेंट अच्छे, सॉरी, उनको पता है ये अपने प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स के लिए आए हैं, सो यस दे डू लिसन टू यू। आपके पास उनका कांटेक्ट भी आता है, आपके पास उनका ईमेल एड्रेस भी आता है, सो यू समटाइम्स गेट कनेक्टेड विद देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एज वेल। स्पेशली कोशिश जरूर उनके साथ लिंक्डइन पर जरूर कनेक्ट हों, और उसके बाद उनके साथ जो है वो कन्वर्सेशंस में, उनकी पोस्ट में, या आप कंटेंट कुछ ऐसा क्रिएट करें कि आप उनको इंगेज करें अपने साथ। सो यू नो यू बेसिकली हैव टू बी इन द लाइट। तो उसमें जब आप रहते हैं, सो आपने बात यहाँ से शुरू की थी कि किन लोगों के साथ जो है वो नेटवर्क आपको करना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं। इट्स बेसिकली अबाउट द म्यूचुअल इंटरेस्ट। आपका जो फील्ड है, आप उन लोगों के साथ जरूर जो है वो कनेक्ट करें, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न। वो आपके मेंटोर्स भी बनेंगे वहाँ से। yes. Yeah. So I think what are some of the most critical aspects जब आप कहते हैं when a person is just starting out और वो अपने लिए कोई networking strategy बना रहा होता है, so what do you think are the most critical aspects that they should keep in mind before going about it? Okay, wonderful. अच्छा, इसमें obviously I'm also on a learning stage, but yes, I have developed certain networking skills by now. मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, और बस सिर्फ एक शौक था कि अच्छा नए लोगों से मिलने का एक शौक, और जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे मिलने का एक शौक था। यस, दिस क्यूरियोसिटी वाज विद मी। अच्छा, इसमें आपने मुझसे पूछा कि नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। मैं एक और भी आपका, क्योंकि हम जब कल एक डिस्कशन कर रहे थे उसमें आप लोग ये भी शेयर कर रहे थे कि रिसोर्सेज भी हम शेयर करें। सो बीच बीच में मैं ये बताना भी चाह रही हूँ, जैसे मैंने पहले एक बुक का जिक्र किया है, एक और मैं ऑथर का जरूर उसमें कहूँगी, हु इज अ स्पीकर एज वेल, डोरी क्लार्क। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और शी हैज़ बेसिकली गिवन कोर्स ऑन लिंक्डइन, वो मैंने भी किया हुआ है, और इट्स हार्डली अ 27 मिनट्स कोर्स, बहुत अच्छा है, एंड शी हैज़ रिटन सम बुक्स ऑन दैट एज वेल। अगर नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी की आप बात करें ना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप हर तरह के लोगों के साथ एक नेटवर्क नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट सेंस। आप हर तरह के उसमें इंडस्ट्री में और हर तरह के इंसान के साथ नेटवर्क नहीं कर सकते। नंबर वन रूल इज ऑब्वियसली द पीपल हु यू एंजॉय टू बी विद, आप उनके साथ नेटवर्क कर सकते हैं। आपने प्रायोरिटाइज करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इनके साथ, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जी अच्छा म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड देन सेकेंड इज प्रायोरिटाइज कर लें कि आप जो है वो किन किन लोगों के साथ जो है वो नेटवर्क के अंदर आना चाह रहे हैं। उसके बाद आप ये डिफाइन कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया कि अच्छा ये मेरी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। आप रोल मॉडल्स बनाते हैं ना अपने, कि अगर करियर काउंसलर हूँ तो मैं देखूंगी कि अच्छा ग्लोबली जो है वो इस फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, इस फील्ड को कहाँ, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, न्यू चैलेंजेस क्या हैं इस फील्ड के। तो हर फील्ड में डिफरेंट जो है वो इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो आप सबसे पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करते हैं। आपने 10 लोगों को अगर निकाल लिया उसमें से कि अच्छा इन लोगों को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएवर, इफ दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, ये आपने डिफाइन करना है कि आपने उनके साथ कनेक्ट किस तरह करना है। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, आपको देखना पड़ेगा कि सर्टेन पीपल आर गुड विद द टेक्स्ट, देयर आर पीपल हु वुड लाइक के अच्छा नहीं वो कॉल पे बात करेंगे, वो टेक्स्ट मैसेजेस पे जरा कम बात करते हैं, उनको होता है कि नहीं जी इंटरेक्शन होनी चाहिए। देन देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू मीट, आप उनके साथ मीट एंड ग्रीट सेशंस कर सकते हैं, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर गुड एट ईमेल्स। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज विद इन योर नेटवर्क, क्योंकि सबके लिए एक जैसी चीजें नहीं होंगी। सो यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर योर ओन सेल्फ विद इन योर सर्कल, कि आपको जो है वो किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ये लोग। थर्डली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो करियर है उसमें आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है
कि कौन आपको उसमें हेल्प आउट कर सकता है आपके करियर को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए. So they can be people who are not directly within your mutual interest, within your circle of influence, but obviously आपने उनके साथ भी अपने personal and professional relationships को build करना होता. That is basically the key. Yeah. Pehle to I think a couple of other people have joined. So for those of us who've just joined us, we're in a conversation with Ms. Samin Zaki, who is a career advisor and counselor, and we're discussing about networking for professional success. That being said, abhi aap baat kar rahi thi about how, you know, काफ़ी लोगों, some people would like to text, some people would like to के वो कॉल पे बात करें, कुछ some people would like to meet up. And I think that ties up very well with my next question, which was related to what are the fears or hesitations that people have when it comes to networking. And the reason I would want to tie your previous answer with this question is, for instance, there are a lot of people jo apne aap ko, they're like, we're introverts, we cannot go and initiate conversations with other people. So how would you suggest those kind of people navigate through their career or professional network? That's a very good question. Yes, there are a lot of people, मेरे ख्याल है majority ऐसे ही हमें मिलते हैं जिनको networking बहुत मुश्किल लगती है. और again, I was reading some literature and I got a very nice example. I'll quote that over here. कि हमें अपनी हेल्थ के लिए, हमारे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं. For instance, we have to eat healthy, we have to maintain our exercise. क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे, so we won't be maintaining a good health. And obviously, हम सबको पता है कि health हम अगर maintain नहीं कर सकते, तो हम अपनी day to day demands को पूरी नहीं कर सकते. Similarly, you know that networking is going to give you success in your career and success in your personal life as well. So by hook or by crook, आपने वो करनी है, right? इसमें ये चीज़ नहीं है कि अगर आप introvert हैं या extrovert हैं. Yes, there are different personality, likes and dislikes हैं या personality types हैं. तो आप हमेशा different तरीके से इसमें कर सकते हैं. I won't go into the discussion कि अगर आप introverts हैं तो आप किस तरीके से करें, because I personally think जितनी psychology का मुझे idea है कि बहुत कम शायद ऐसे लोग होते होंगे जो completely introverts होते होंगे या completely extroverts होते होंगे. There's always a mix. आप हमेशा जो है वो आपका niche किसी एक साइड पर होता है, लेकिन आप उस बिल्कुल जो है वो एक एक्सट्रीम उस पे लेवल पर नहीं होते हैं जो बिहेवियर होता है लोगों का. So I'm sorry, what we were talking about, what was the question? I just lost. So the question was, what are the fears or hesitations do you think people have? Yes. अच्छा, उसमें definitely people do have fears. अगर हम अपने local context में भी बात करें और अगर हम particularly females की हम बात करें या अगर हम दोनों genders की भी बात करें, तो people do have fears कि अच्छा पहले तो उनको ये fear होता है कि अच्छा हम contact कैसे करें किसी को. It's very, very simple. You can write an email to somebody. You can initiate a conversation on their social media profile. और उसमें सबसे पहले उनसे जॉब की बात ना करें क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अगर हम सिर्फ करियर सक्सेस की बात करें तो what people do, they would start writing to somebody. और बहुत क्लिशेड से मैसेज होते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं और उसमें लिखा होता है कि जी एंड में कि जी वी आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग. सो इस तरह से अगर आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे तो लोग आपको नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी, इट्स अ बिजी वर्ल्ड, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन प्रायोरिटीज. तो आपने कहाँ पर किसको किस तरीके से कांटेक्ट करना है, ये स्ट्रेटजी आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं. लेकिन the important thing is कि yes, the fears and challenges are there. मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ how I started networking और किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती रही मेरे साथ. अच्छा, जिससे मैंने पहले शेयर किया, I actually had an interest कि अच्छा नए लोगों के साथ मिलूँ और एक क्यूरियोसिटी हमेशा रही. So what I used to do, I used to go to different events. That was basically not only my personal interest, मेरे अपने profession के लिए बहुत important था because I have been working into the
एज ए लाइजन ऑफिसर, एज एन एक्सटर्नल लैंग्वेजेस के उसमें ऑफिस में, तो जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। तो वो एक दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों का इंटरेस्ट था। अच्छा, पहले क्या होता था कि आई यूज टू गो टू डिफरेंट इवेंट्स, और मैं अकेली जाती थी, और एक साइड पर बैठ के, मतलब जैसे कोई सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, या कोई भी सेशन है, टॉक्स हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, मैं बैठ के पूरा टाइम अटेंड करके, अच्छा जी चाय शाय पी, और वापस उठ के घर आ। I did that a couple of times, but then I realized, what am I doing? मतलब मे बी आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नॉट एवरी टाइम। आप एक ऑब्जर्वेशन फेज में होते हैं। So next you will actually start going to events, you will start meeting people, and ask others about their work, क्या वो करते हैं, कहाँ से हैं। So you know, there has to be a starting point for something. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप अपने कार्ड्स भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप डिफरेंट इवेंट्स में मिल रहे हैं, फिर आप किसी को इनवाइट कर लें अपने, इफ़ यू हैव अ वर्क प्लेस पे इनवाइट कर सकते हैं, आप किसी बाहर किसी मीटिंग पे इनवाइट कर सकते हैं। तो ये आपने डेवलप करना है कि किस तरीके से। अगर आप इस फियर में हैं कि लोग जो हैं वो मे बी आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेंगे, सो दैट्स अ राइट फियर। हर कोई आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगा, बट येस 10 में से 2 लोग हो सकते हैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करें। और इस चीज़ को कभी पर्सनल ना लें। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं, जैसे मुझे भी सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, और ऑनेस्टली समटाइम्स ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज या ऐसी कोई चीज़ है जो उसमें कुछ गलत है, बट यस वी आर ऑक्यूपाइड, everyone is occupied, it's a busy world. Yeah, that's very interesting. Keeping in mind, Abhi, since we're talking about fears, so keeping in mind हमारे जो cultural constraints etc., do you think there are any gender barriers, let's say for women, that they would have to face when they're networking? Yes, gender barriers तो हैं, लेकिन उसमें आप में खुद फिल्टर लगाना होता है कि आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट देखती हूँ लोगों के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इधर फेसबुक और लिंक्डइन और इंस्टा में भी एनी, कि आपको स्पैम में मैसेजेस किए हुए किसी ने, और मे बी आपकी पिक्चर्स के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स किए हुए या समथिंग लाइक दैट, एंड पीपल स्टार्ट पोस्टिंग दैट स्क्रीनशॉट्स लेकर। दिस इज समथिंग जो कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं। You know, you don't have to respond to everybody who is barking out there. It's as simple as that. तो चैलेंजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और हमारे अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो वहाँ फीमेल्स के लिए ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन आई बिलीव एवरीवन, whether a male or a female, we all know कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमारी कहाँ तक एक लिमिटेशंस हैं। आप उस लिमिटेशंस में रहकर बिल्कुल अपने तरीके से एक नेटवर्क अपना डेवलप कर सकते हैं। You just need to be assertive, honestly speaking. You have to be confident and you have to be assertive. I mean, by being assertive, I would say when it is a yes, it is a yes. When it's a no, it's a complete no. Yeah, that's very reassuring, I would say. So do you think there are any strict do's or don'ts जो people should adopt or not adopt when it comes to networking? So when they're reaching out to somebody, are there some don'ts that complete avoid these topics of discussion or doing this? Samin, give me a minute. Yeah. Okay. Do's and don'ts. Yes, these are as simple do's and don'ts जो कि आप समझें कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी, यू हैव टू मेंटेन द ट्रस्ट एनीबडी इज प्लेसिंग ऑन यू, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुनने में तो आपको क्लिशेड लगेंगी, बट दीज आर एक्चुअली द पीपल स्किल्स, यू नो। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आपको अगर आती हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स भी जिनको कहते हैं, जिनको सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं,
जो कि कहते हैं कि बेसिकली होती सॉफ्ट स्किल्स हैं, बट आई मीन दे आर द एक्चुअल हार्ड स्किल्स टू लर्न एंड एवरीथिंग. सो वो डूज एंड डोंट्स बिल्कुल हैं वहाँ पर. लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगी कि if you are giving the credit where it is due, these are little tips. If you are being thankful, if you are being grateful to the people who have helped you, चाहे जिस किसी ने आपके साथ बहुत थोड़ा सा कहीं पे हेल्प आउट किया है, तो आप उसको क्रेडिट जरूर दें, पब्लिकली दें या उनके सेपरेटली उनको दें. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें हम इस पे भी बात करते हैं कि आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं रिलेशनशिप, या आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं अपना एक नेटवर्क. मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ. मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आई डू हैव माय मेंटर्स, माय टीचर्स, द पीपल हु आर क्लोज टू मी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं बहुत ज़्यादा उनको आप समझ लें कि क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का कि वेयर एवर आई एम टुडे तो मैंने उनसे बहुत सीखा है. ऑनेस्टली जिस तरह मैंने पहले कहा कि इट्स अ वेरी बिजी लाइफ इन बिजी वर्ल्ड, लेकिन आपने कुछ प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होती. अब मेरी प्रायोरिटी क्या है कि जैसे हमारे डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, ईद है या देयर आर अदर ओकेजन्स, तो ऑनेस्टली आई डू नॉट सेंड अ बल्क ऑफ मैसेजेस. मैं लोगों को इररेलेवेंट ग्रीटिंग्स नहीं शेयर करती हूँ. मैं 8, 10 या 15 लोगों को कस्टमाइज्ड मैसेजेस लिखती हूँ ऑन सर्टेन ओकेजन्स, और उसके लिए किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं भी है. समटाइम्स यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर बीइंग नॉस्टैल्जिक, यू आर थिंकिंग कि अच्छा इस टाइम पर इनके साथ इस तरह से बात हुई थी तो उन्होंने आपको जो है वो इस तरह से हेल्प आउट किया. और यू आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल. बी जेन्युइन. हमेशा नाम लिखकर बात करें किसी से. सो वो चीज़ जो है वो आपको कनेक्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज जो मैं आपके टिप्स आपके साथ शेयर करूँ. दिस इज समथिंग दैट आई डू. और ऑनेस्टली कई दफ़ा ऐसे मैसेजेस हमें मिलते भी हैं from students. So they are very grateful for a little task that we have done for them. लेकिन इससे होता है क्या है कि आपकी एक बहुत अच्छी एक रेपुटेशन बनना स्टार्ट हो जाती है. आपकी जो है वो एक नेटवर्किंग जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाती है. Yeah, so I think what you a crux of it is कि बहुत personally keep it personalized for everybody. So quality over quantity essentially, right? Not for everybody. Yeah. For the people जो कि जिनको आपने प्रायोरिटाइज किया है. एक आपका लार्जर नेटवर्क है. लेट्स टेक इट लाइक दिस. लेट्स टेक इट लाइक ऑर्बिट, जो आपका प्लेनेट होता है. तो उसमें कुछ एक आपका लार्जर नेटवर्क है, राइट. उसके साथ आप बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी एक ऑडियंस के साथ बात करते हैं. अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम अपनी एक लार्जर ऑडियंस से और तरीके से बात करते हैं. जो हमारे क्लोजर सर्कल में लोग होते हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन और होता है, हम उनके साथ बात और तरीके से करते हैं. सो येस, प्रायोरिटाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक हो गया. एंड अभी हमने बात की थी, यू वर गिविंग अस अ कपल ऑफ रिसोर्सेज एज वेल. आई थिंक आपने बताया कि आपके लिंक्डइन पे देयर इज दिस डॉक्यूमेंट दैट टेल्स अस अबाउट अ लॉट ऑफ एसोसिएशंस दैट यू कैन रीच आउट टू. और फिर आपने डॉय क्लार्क की बुक का बताया. सो आर देयर एनी अदर हेल्पफुल रिसोर्सेज दैट इंडिविजुअल्स कैन यूज टू लर्न द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग? नॉट राइटली इन माई हैंड अभी तो नहीं है. लेकिन अगर आप कहें कि मैं मतलब रिसोर्सेज का कोई लिंक्स या इस तरह के कुछ शेयर करूँ, तो अभी तो जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, दीज आर द थिंग्स. बट नेटवर्किंग ऐसी चीज़ है, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि नेटवर्किंग ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा. इट इज़ कम्प्लीटली ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. आप करेंगे तो आपको आएगी. इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड थिंग. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन, गिव बिफोर यू वांट टू टेक. जिस तरह आप कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर. इसमें इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. अगर आपने एक वेब ऑफ रिलेशनशिप्स अपना डेवलप करना, तो आप पहले जो है वो एक चीज को जो है वो गिव एंड टेक वाले में रिलेशनशिप में आए, तो तभी वो चीज जो है ना वो वर्कआउट करती है. अदरवाइज नहीं वर्क. Yeah. Lastly, I'd like to link it to the start of our conversation when we were talking about LinkedIn and Instagram and how you should choose the right medium for whatever you're promoting, or even if you're promoting yourself. Quite frankly speaking, it came off thoda sa as a shock to me, because when we think of professional networking, तो LinkedIn is the only platform that we think कि अच्छा ये use किया जा सकता है. So what are your comments on that? Do you think other social media networks are way too casual to be used for professional networking? No, I don't think so.
अच्छा उसमें ये है इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. देखें मैं आई एम नॉट ऑन इंस्टा. एक टाइम पे मैंने बनाया था अपना अकाउंट बट आई कुडंट मेंटेन इट, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया. आई डोंट नो अभी है कि नहीं, मुझे याद नहीं है. बट द पॉइंट इज कि आपकी ऑडियंस नहीं है एक जगह. सो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप अपना वहाँ पर नेटवर्क डेवलप करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इज़न्ट इट गुड कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर अपना नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश करें कि जहाँ पे आपकी ऑडियंस है. You have to be you have to be reachable, you have to be accessible. तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं. यस, लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आप बेसिकली किस एरिया में जाना चाह रहे हैं. आई नो पीपल हु आर यूजिंग यूट्यूब, आई नो पीपल हु आर using Facebook. I know people who are using Insta as a primary source of, building their brands and everything. There are a lot of stuff जो कि बहुत अच्छा stuff है Insta पर. काफी products के point of view से मैं अगर देख रही हूँ, they are not present on LinkedIn, और LinkedIn का usage भी शायद उन लोगों को नहीं आता. So I won't tell people कि आप इस पे stick करें, लेकिन अगर हम specific कुछ discipline wise बात करें तो yes, maybe LinkedIn can be a good platform. That's very interesting. Mhm. I think we have a couple of questions. Again, like I said at the beginning, if anybody has any questions, you can either raise your hand or you can even drop a question in the Q&A box down below. We already have a couple of questions. One attendee wants to know the article that you were talking about earlier. So that and the book that you were talking about. So can we get the names for that? Article? Yeah. Did I mention of any article? Acha, I think on the book I mentioned की थी. yes. Yeah. I actually mentioned a book. I took a screenshot of that book. उसका जो overview है वो इस वक्त online है, लेकिन वो freely available नहीं है किताब. लेकिन मैं उसके साथ जो that is basically networking for career success, I believe. उसके author वो सब चीजें details में आपके साथ share कर लूंगी जब आप Samin, I think you're on mute. शेयर कर सकते हैं. उस स्क्रीनशॉट को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं. सेकेंडली ये कि मैं रेकमेंड कर रही थी डोरी क्लार्क का, इस वजह से शी इज़ एन एक्सपर्ट इन नेटवर्किंग. उनकी बुक्स भी हैं, उनका न्यूज़लेटर भी है लिंक्डइन का, और सेकेंडली ये कि कुछ कोर्सेज भी हैं. सो इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न अबाउट नेटवर्किंग, सो देयर आर डिफरेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज शी कीप्स गिविंग. तो उस पर ज़रूर आप लोग देख लें. Yeah, for anybody who would like to know the name or details of the book, I'd also like to reiterate that we would be posting the details, key learnings from this on our Instagram page as well. So you can just check it out tomorrow, perhaps later at night, and you'll get all the details and the crux of this conversation. Again, we have another question. Somebody wants to know what specific components you see when you see a fresh graduate request, fresh candidate request on LinkedIn. So as somebody who's very well connected, so when koi fresh candidate या koi fresh graduate sends you a request on LinkedIn, what do you think what are the components that you look at they would be a very beneficial part of my network if I add them to my network? Interesting question. थोड़ा सा हट के है हमारे टॉपिक से, लेकिन it's a very interesting question. Your profile should be complete. I do not accept any. I का मतलब है कि anybody who is into networking and connections and use of LinkedIn won't like to accept a connection request from a person जिसने display picture नहीं रखी हुई कोई, या फिर कोई XYZ पिक्चर्स लगाई हुई हैं. मे बी इफ यू आर अ कैट पर्सन तो कुछ लोगों ने बिल्लियों की तस्वीर लगाई होती है. तो इस तरह से ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उस पर आपकी पिक्चर होनी चाहिए. दैट इज द फोरमोस्ट थिंग. सेकेंडली ये योर हेडलाइन, व्हाट इज योर हेडलाइन इज सेइंग कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप कहाँ से हैं. एंड थर्डली योर ओवरऑल लुक ऑफ योर प्रोफाइल, आपकी एक्टिविटी क्या रही है पिछले फॉर इंस्टेंस फ्यू मंथ्स बैक. सो प्लस ये कि आपकी जो एक्टिविटी अगर कोई है भी, सो हाउ good and how productive that activity is. Unfortunately, people don't understand that whatever digital footprints they are leaving on the social media, they are actually being looked at by other people.
और अगर आप बहुत ज़्यादा critical हैं और for no reason, and you have spreading some negative vibes, so obviously nobody would like to have you in your network, in their network. Yeah. This is just one tip. Everyone of us as a human like to be around cheerful people and Yeah. positive people. That's the rule. Yeah. So one more question is this. Okay, when somebody's just starting out, and like you said, that networking is a game of give and take. You give something and then you can take something in return. For let's say somebody who isn't very far ahead in their career, graduates ho gaye, university students ho gaye, they don't have much to offer. So what do you think is something that they can do उस तरह के situations में when they don't have much to offer but they've got a lot to learn from people in their Okay. network? Okay, I knew that question was coming. So ये हमारी assumption होती है कि we do not have something to offer. Let me tell you, if you are going to do anything, any little task that is making somebody's day brighter, you have something to offer. Anything, any nice message, any nice greeting message, जो बहुत ज़्यादा जो है वो overwhelmingly flattering now, but you are just sending a nice wish to somebody. So yes, you always have something in your bucket that you can offer, even if you are a fresher. That's My very answer. interesting. Yeah. I think we don't have any more questions. Samin, it was lovely to have you, first of all, and thank you Lovely so to much for such a promise you. wonderful and insightful conversation. If you have any parting words or any comments to add, we would love to hear them. I would like to say thank you to the Kamai platform. Thanks to you and thanks to your team who has been very delightful to speak to. और आपके कोई मज़ीद को questions आपके audience के होंगे, I would love to answer them. I'll post a few things on the posts जो आपने वहाँ पे की हैं social media पे, especially the screenshots of the books and the resources that I am sharing. और this is an open call. Anybody who's having a question, तो आप इनके कमाई की post पे आप कोई questions अगर पूछना चाहते हैं regarding the networking and how it actually would help you or the others, और अगर कोई challenge है उसके अंदर आपको, तो वो हम ज़रूर उसको address करेंगे. Most welcome. Yeah. I think काफी लोगों के question answers वो chat box में थे, तो I read them out to you. So I don't think anybody wants to speak up as of now. That's fine. Yeah. So first of all, thank you so much for Samin for this wonderful conversation. If you have any questions, you can drop questions underneath the post that we have for this session, and we'll be sure to get back to you, or we can get you connected with either Samin or somebody else. Again, like I said before, if you missed this session, Beach mein se, you can go onto our Instagram page tomorrow and we'll have the key learnings or the crux of this session over there. Again, thank you so much for coming over here, Samin, and enlightening us. Thank you once again. And Allah Hafiz to everyone. Happy networking.